شیطان جو اپنی آزادی کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہر طرف خوف، خاموشی، تباہی اور لاشوں کا سایہ۔ زمین ظلم سے بھر جائے گی، ایک ایسی فوج جو انسانوں کو بے رحمی سے ختم کر دے گی۔ وہ وقت دور نہیں جب دنیا جہنم کی تصویر بن جائے گی۔ پھر مہدی ابھریں گے، عیسیٰ اتریں گے۔ یہ کہانی ہے دجال کی، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئیں گے ان سب میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کہاں قید ہے، کون ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا۔ تمیم داری جو اس وقت ایک عیسائی تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ وہ اسرائیل سے مکہ کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک سمندر میں زبردست طوفان آ گیا۔ طوفان نے ان کی کشتی کا رخ بدل دیا اور وہ ایک پراسرار جزیرے پر جا لگے۔ جب وہ لوگ اس جزیرے پر اترے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جو کے پوری بالوں میں لپٹی ہوئی، جس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ پاؤں تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ منظر نہایت خوفناک تھا۔ تمیم داری نے اس سے پوچھا، تو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں الجساسہ ہوں۔ پھر اس نے انہیں ایک جگہ جانے کو کہا اور بتایا کہ وہاں ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری اور اس کے ساتھی وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا انسان بیٹھا ہے جو بھاری لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور گردن مضبوط بیڑیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے تمیم داری اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ بیسان کے درختوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، ایک وقت آئے گا کہ وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، دریائے تبریا، لیک تبیریس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہاں اب بھی پانی موجود ہے۔ اس آدمی نے کہا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس خوفناک قیدی نے کہا، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے اللہ نے قید کیا ہوا ہے اور میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کچھ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک نشانی نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ کی ہجرت تھی، وہ پوری ہو چکی، باقی بھی جلد پوری ہو جائیں گی۔ جب مجھے آزادی ملے گی تو میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ میری زندگی کے 40 دن ہوں گے، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ میں دنیا کے ہر شہر میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ تمیم داری جب واپس آئے تو اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری نے سچ کہا ہے۔ جس شخص کو انہوں نے دیکھا وہ دجال ہی ہے۔ وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا ظلم، فتنوں، ناانصافی اور فساد سے بھر جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرقی سمندر میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چاہے تم کتنے بھی مضبوط ایمان والے ہو، دجال تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا تم اس سے دور رہو۔ جب دجال ظہور کرے گا تو وہ اپنی ایک عظیم لشکر تیار کرے گا۔ اس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہوگی۔ جہاں بھی وہ جائے گا، کامیابی اس کے قدموں میں ہوگی۔ دجال کا کوئی مقابلہ کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ وہ دنیا کو ظلم اور خوف سے بھر دے گا۔ جو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، انہیں وہ قتل کر دے گا۔ دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرے گا۔ اس کے پاس ایسی قوتیں ہوں گی جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوں گی۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا۔
उसके कहने से जमीन सब्ज हो जाएगी और आसमान से बारिश बरसेगी। वो अपने फॉलोअर्स को दुनिया में ही जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, जिससे आम लोग गुमराह हो जाएंगे। हदीस में गद्दा का जिक्र आता है जिस पर दज्जाल सफर करेगा। आज के दौर में इसे हम सबसे तेज और मॉडर्न फाइटर जेट या टेक्नोलॉजी से ताल्लुक दे सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी मशीन का तस्वुर भी नहीं था। दुनिया दज्जाल के खौफ में आ जाएगी और लोग अल्लाह से मदद की दुआएं मांगेंगे कि उन्हें कोई रहनुमा मिले जो इस फितने का मुकाबला करे। जब जुल्म और गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी, तब अल्लाह ताला इमाम मेहदी को जाहिर करेगा। वो एक ऐसे रहनुमा होंगे जो इंसाफ और हक का परचम लेकर उठेंगे। उनके गिर्द मोमिन जमा होंगे और वो एक लश्कर बनाएंगे। इमाम मेहदी खुरासान से निकलेंगे और उनकी फौज काला झंडा लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करेगी। उनका मकसद होगा दज्जाल के जुल्म से दुनिया को निजात दिलाना। वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि मुसलमानों को इस जंग में नुसरत अता फरमा। फिर शुरू होगी वो जंग जिसे अल कुबरा यानी बारी जंग कहा गया है। एक तरफ दज्जाल और उसकी लश्कर और दूसरी तरफ इमाम मेहदी के रहनुमाई में मुसलमानों का फौज। ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं होगी, ये ईमान और यकीन का इम्तिहान होगा। दज्जाल अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जादू के जरिए दुनिया पर राज करना चाहेगा, लेकिन हक की रोशनी धीरे धीरे अंधेरों को चीरकर उभरने लगेगी। इमाम मेहदी और उनके साथी पूरे जज्बे के साथ जंग लड़ेंगे। ये जंग इंसाफ और गुमराही के दरमियान आखिरी मुकाबला होगा। जब जंग अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगी, तब आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। उनके चेहरे से नूर तपकेगा और उनकी आमद हक का सबूत बनेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जंग में शामिल होंगे। जो लोग दज्जाल की फौज में थे, उनमें से कई लोग सच्चाई को पहचान कर इमाम मेहदी और हजरत ईसा के साथ मिल जाएंगे। जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा जिंदा होकर आए हैं, तो वो भागकर छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसकी मुलाकात हजरत ईसा से होगी तो वो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा और दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर दोबारा कायम होगा। ये कहानी सिर्फ मुस्तकबिल का वाकया नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि फितने के दौर में सिर्फ ईमान ही बचाता है। हक हमेशा जीतता है और फितना हमेशा मिट जाता है। जो आने वाला है वो खौफनाक है। इंसानों का खून का प्यासा। वो एक दीवार के टूटने का इंतजार कर रहा है। फिर हर तरफ खून ही खून होगा। वो इंसानों का कत्लेआम करेंगे। दुनिया की कोई चीज उन्हें रोक नहीं सकती। जो हजरत ईसा के साथ होगा वही बच जाएगा। फिर अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। यह है कहानी याजूज और माजूज की। एक दीवार
यूं नजर नहीं आती, मगर उसका राज सदियों से इंसानी जहन को परेशान कर रहा है। कहा जाता है उस दीवार के पीछे एक ऐसी कौम बंद है जो जब निकलती है तो जमीन का चेहरा बदल जाता है। वो दिन जब ये दीवार टूटेगी, दुनिया का आखिरी दौर शुरू हो जाएगा। ये कहानी है उस दीवार की, उस बादशाह की जिसे रब ने ताकत और हिकमत दी, और उस कौम की जिसका निकलना कयामत का एक बड़ा निशान होगा। कुरान मजीद में जिक्र है एक अजीम बादशाह का, जुल्करनैन। अल्लाह ताला ने उसे जमीन पर इख्तियार दिया, इल्म दिया और हर चीज का सबब अता किया। वो मशरिक से मगरिब तक सफर करता गया, कभी रेत के सहराओं से गुजरता, कभी समुंदर की गहराइयों को देखता, कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचता। एक दिन जुल्करनैन एक ऐसी कौम तक पहुंचता है जो अजनबी जबान बोलती है, जिनके चेहरे खौफ से पीले पड़ चुके हैं। वो इशारों में कहते हैं, ए जुल्करनैन, हमारे दुश्मन याजूज और मजूज जमीन पर फसाद मचा देते हैं। वो हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमारी बस्तियां जला देते हैं। हमें उनसे निजात दे दो। जुल्करनैन उनसे कहता है, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी ताकत से मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दूंगा। और फिर लोहे की सालें इकट्ठी की गईं, आग को भड़काया गया, और जब लोहा लाल हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। दो पहाड़ों के दरमियान खड़ी हो गई एक दीवार, मजबूत, सख्त और ना तोड़ी जा सकने वाली। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार टूट जाएगी। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं। दीवार के पीछे वो कौम बंद रही। हर रोज यजूज और मजूज दीवार को खोदते, दिन भर मेहनत करते। शाम होती तो कहते कल फिर आएंगे, लेकिन जब सुबह होती तो दीवार पहले से भी मजबूत मिलती। ये सिलसिला चलता रहा जब तक एक दिन उनके दिल में अल्लाह का नाम आया। वो कहते हैं इंशाअल्लाह, और उस दिन अल्लाह ताला के हुक्म से दीवार झुक जाती है, दरकने लगती है, जमीन हिलती है, पहाड़ों से आवाज आती है और वो कैद खत्म हो जाती है। लेकिन पहाड़ों में कुछ लोग पनाह लिए हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, या रब, हमें इन फसादी लोगों से निजात दे। रात होती है, आसमान खामोश है, फिर हवा बदलती है। एक अजीब बीमारी उन लोगों के बॉडी में उतरती है। उनकी गर्दनों में एक कीड़ा लगता है और एक ही रात में वो सब गिर जाते हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा में गिरते हैं। यजूज और मजूज मर जाते हैं। जमीन पर सन्नाटा छा जाता है, ना आवाज ना हरकत, सिर्फ खौफ। लेकिन उनकी लशों से बदबू उठती है, इंसान सांस नहीं ले पाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जमीन को पाक कर दे। और फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजते हैं जिनकी गर्दनें ओंटों जैसी लंबी होती हैं। वो लशों को उठाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उन्हें दूर ले जाते हैं। फिर बारिश होती है, ऐसी बारिश जो जमीन को धो डालती रहे। जमीन चमक उठती है, जैसे कभी फसाद ने इससे छुआ ही ना हो। फिर मिट्टी से नया अनाज उगता है, अंगूर के गुच्छे इतने बड़े कि पूरी कौम खा ले, और अनार इतना कि एक खानदान से भर जाए। जमीन फिर से जिंदा हो जाती है, इंसान सुकून महसूस करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब दुनिया फिर से सुकून में लौटती है तो जमीन दोबारा कांपने लगती है। जमीन के सीने से निकलता है एक जानवर, इतना बड़ा कि उसका सर बादलों को छू लेता है। उसकी आंखें इंसान के रूह के राज पढ़ती है। वो हर माथे पर मोहर लगाता है, ईमान और कुफ्र की पहचान के साथ। और फिर लोग समझते हैं ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वाकया था जो दोबारा लिखा जाएगा जब वक्त पूरा होगा। और जब वो दीवार दोबारा हिलेगी तो इंसान याद करेगा, खौफ कभी गया नहीं था, सिर्फ सो गया था।